देखना है देखना है। यस, चलो हम लोग यहाँ एक्सपेरिमेंट देख ही लेते हैं। ओके, चलो अब हम देखते हैं कि मिल्टन ने किस तरह से फाइंड आउट किया था। ओके, लोग जो बच्चे रह गए सॉरी फॉर दैट। आवाज आ रही है आपको? In 1906, Robert Millikan was able to determine the value of the charge on the electron in his oil drop experiment. A schematic of his experiment is shown here. Placed over here and a high DC voltage capable of providing potential difference ranging up to 10,000 volts. 10,000 Over watt here is an atomizer for आप देख spraying सकते हैं oil atomizer। into tiny droplets and a telescope over here to view the oil drop. Now let us see what we have inside this container. There are two plates सुनाई over दे रहा है here. ना अच्छे से? The oil is sprayed on the top like this. The top plate has a small hole over here. This hole allows the oil drop to enter this region between the two plates. The top plate is connected to the positive terminal of the battery. The X-ray comes from here and ionizes the gas that is present over देखिए, here, यहाँ से which X-ray in आ रहे turn हैं, charges the और उसमें oil क्या drop करेंगे बच्चों? that Ionize enter करेंगे। in this region. Now at first the voltage is turned off between the plates. पहले ही बंद रखोगे वोल्टेज। We watch the motion of the falling drop. ये First it माइक्रोस्कोप से हम लोग देख रहे accelerates हैं, because of the तो gravitational सभी force जो है वो Fg, नीचे की ओर आ रहा and है, then ठीक due है? to viscous force Fv, a steady velocity is reached due to the air inside, which बहुत acts ज्यादा in a मत सुनना direction इसके बारे opposite में, to the motion of the oil drop. ये सब आपको Let बहुत this यूज करता velocity है। be v1. v1 can be known by recording the time required for an oil drop to fall a certain distance with a constant, where 4/3 pi r cube is the volume of the oil drop and g is the acceleration due to gravity. Rho is the density of oil, and accordingly Fg can be calculated from this equation. Now the voltage is applied between the two plates. The top plate is connected to the positive terminal and force due to electrical field, which is Fe equal to Q into E, on the oil drop act upwards, अब ऑयल ड्रॉप where ऊपर की Q ओर is the जाएगी। charge on the oil drop and E is the magnitude of electrical field. This force can do two things. Number one, it may stop the motion of the oil drop. वो स्टॉप कर देंगे और बढ़ा In देंगे that case, ज्यादा। Fg equal to Fe equal to Q into E. Now E equal to V divided by D, where V is the voltage applied across these over here are known. So that is Fe equal to, therefore Q into V by D equal to 6 pi eta R V1 plus 6 pi eta R V1 plus V2. Charge on हमें different तो oil drops was भाई इसमें मत calculated. पढ़ना। Integral अब mark. आगे ये देखो, ये Q का वैल्यू आया था, ये देखो इतने वोल्टेज पे इतना चार्ज, ये वोल्टेज है और इस वोल्टेज पे इतना चार्ज। आप देखो यहाँ पे पूरा चार्ज देखो, चलो आप देख सकते हो कि ये सभी जो थे वो किसी एक के क्या थे भाई, मल्टीप्लीकेशन में थे। आप देख सकते हो किसके मल्टीप्लीकेशन में थे ये, 1.602 इंटू 10⁻⁻⁻⁹ -19। ओके, यस और नो? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. तो यहाँ से आपको पूरा पता चल जाएगा कि ये जो है, यहाँ से हमें पूरा पता चल जाएगा कि भाई इसमें कोई ना कोई क्या हो रही है भाई, दिक्कत हो रही है। मतलब ये किसी एक के क्या है भाई, सभी मल्टीप्लिकेशन में। तो यहाँ पे नीचे दिया हुआ है, दिख रहा है आपको, Q इज इक्वल टू N, वेयर N इज द इंटीजर। यही बात समझ में? तो उससे पता चल गया कि कोई ना कोई, देखो सभी जो है, सभी जो है, देखो इन दोनों में चार्ज का डिफरेंस कितना है, ऊपर और नीचे वाला। इस तरह से वो लोग कुछ कर रहे थे, चेंज इन चार्ज, तो उससे उन लोगों को पता चला कि भाई कितना चार्ज में डिफरेंस आ रहा है, ठीक है? मतलब माइनस करना इन दोनों को, तभी, क्योंकि एक में 5 इलेक्ट्रॉन, एक में 6 है, तो माइनस करेंगे तभी एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या चार्ज मिल जाएगा कि नहीं, हाँ कि ना? तो उन्होंने ऐसे ढूंढा है पूरा इलेक्ट्रॉन के चार्ज। हमें तो सिर्फ वो देखना था कि भाई किस तरह से उसने एक्सपेरिमेंट किया। अब हमें पता चल गया है सर एग्जैक्टली क्या चीज है और किस तरह से आया। ओके, यस और नो? Yes, sir. आ गया क्या सब समझ? बोर्ड स्क्रीन आ गई, बोर्ड आ गया वापस सामने। चलो रेडी अभी? अब चलो, अब आपको पता चल गया इलेक्ट्रॉन आ गया।
अब हम किसकी बात करने वाले हैं? प्रोटॉन की बात करने वाले हैं, ठीक है। किसकी बात करने वाले हैं हम लोग? प्रोटॉन, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। चलो रेडी है सभी बच्चे? Yes, sir. Now we will just talk about the डिस्कवरी ऑफ क्या आएगा बच्चों? प्रोटॉन। लेकिन उससे पहले हाँ, आपकी एक्सरसाइज जो बहुत बड़ी है ना, उसमें हम लोग धीरे धीरे करते जाएंगे एक्सरसाइज साथ में, ठीक है। आप कल देखो बच्चों, एक्सरसाइज है वो पूरे 67 या 9 जितने एग्जाम्पल्स है एक्सरसाइज में, मैं बताऊँ तो 67 है। तो हम लोग धीरे धीरे करते जाएंगे तभी आपको पता चलेगा, ठीक है। अभी हम लोग देखने वाले हैं डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, लेकिन उससे पहले आप होमवर्क में ट्राई करोगे बच्चों, आपको करना है और कल क्वेश्चन आंसर कर लेना मुझे, ओके। हाँ या ना तो बोलो। 2.1 करना है, कर सकते हो ना? एक तो कर सकते हो, जितना चला वो एक, जितना चला वो आपको लिखना है अच्छे से। और ये 2.1 ये दोनों मुझे पीडीएफ सेंड करनी होती है डेली। आप कर नहीं रहे हो, मुझे पता है। कई सारे बच्चे होमवर्क सेंड ही नहीं कर रहे, ठीक है। मैं सोच रहा हूँ लिख रहे होंगे बच्चे, जैसा यहाँ पे मैं पढ़ाता जा रहा हूँ आपको लिखता जाना है, ठीक है। चल अब क्या आएगा? डिस्कवरी ऑफ क्या आएगा बताओ? डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। सर सिर्फ 2.1 ही करने ना होमवर्क में? हाँ, और कोई नहीं। और वो भी कल नहीं आएगा तो आप मुझे पूछोगे, याद करवा देना कि नहीं आया या आया। आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो आप डाउट पूछ सकते हो। चलो नेक्स्ट, इजी है वैसे, फर्स्ट चैप्टर के साथ ही है जुड़ा हुआ। चलो अब बात ये हो गई कि जैसे जे थॉमसन ने बहुत मस्त प्रैक्टिकल किया, उसने बताया, जे थॉमसन ने ऐसा बताया कि कैथोड रेज जो है हर किसी भी हर कोई आप कैथोड ले लो, वहां से एनोड की ओर, कैथोड से एनोड की ओर रेज तो निकलते ही निकलते हैं, है ना? यस सर। फिर एक गोल्डस्टीन करके बंदा आया, उसने बोला कि मुझे भी ये प्रैक्टिकल करना है कि जो जे थॉमसन ने किया है, तो मैं भी वो प्रैक्टिकल करना चाहता हूँ। अब बात ये हो गई कि जे थॉमसन ने बोला था कि आप किसी भी टाइप का कैथोड लो, से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो गोल्डस्टीन ने क्या किया, कैथोड ट्यूब ही ली, लेकिन उसमें थोड़ा सा चेंज हो गया। कैसे? एक्चुअली में बात ये थी, गोल्डस्टीन ढूंढना चाहता था कैथोड अच्छे से, और वो चाहता था कि मुझे एल्यूमिनियम का कैथोड रखना है। तो पूरे अपने स्टोर रूम में ढूंढने गए, लेकिन उसको एल्यूमिनियम नहीं मिला। फिर वो जब अपना हैंड वॉश करने गया, तब उसको वॉश बेसिन में देखा कि वहां पे जो सीव होती है, परफोरेटेड सीव होती है, पता है ना आपको, वो उसे दिख गई और वो एल्यूमिनियम की थी। तो उसने बोला कि चलो भाई, इस परफोरेटेड, ये जो सिंक की ये जो परफोरेटेड सीव है उसी को ले लेते हैं एज अ कैथोड। और सामने उसने क्या रखा? एनोड। और यहाँ पे उसने क्या रखा बच्चों? एनोड रखा। समझा बात? फिर हाँ, उसने जैसे यहाँ पे वोल्टेज दिया तो एक चीज तो कॉमन आएगी, बताओ कौन सी चीज कॉमन आएगी वो बताओ। चलो यहाँ पे कौन से रेज निकले होंगे? कैथोड रे ना वो एनोड की तरफ जाते हैं। यस, वेरी गुड। लेकिन बात ये थी, ये परफोरेटेड था। तो यार बात ये होती थी कि उसने ये देखा कि कई सारे और जो है वो वेव्स एनोड की तरफ जा रहे, मींस जैसे हम बात करें तो सॉरी कैथोड की ओर जा रहे थे। कैथोड से निकल के एनोड की ओर तो रेज आ ही रहे थे, जिसको हमने कैथोड रेज बोला। जिसको हमने कौन से रे बोला बच्चों? कैथोड रे। लेकिन उसने कोई कैनाल रेज देखे, उसकी डायरेक्शन बिल्कुल अपोजिट थी। उसकी डायरेक्शन बिल्कुल अपोजिट थी। वो जो है वो प्लस से निकल के किस ओर जा रहे थे? माइनस की ओर जा रहे थे। और यहां से निकल के ये जो ग्लास की शीट है, वहां पे वो क्या होता था? टकरा देते। तो बार बार टकराने की वजह से यहाँ पे येलो कलर की शाइनिंग आ रही थी, येलो कलर के स्पॉट दिख रहे थे, और वो वहीं पे दिख रहे थे जहां पे ये पोरस है। आप समझे बात? तो इसका मतलब कि यहाँ पे भी कोई और जो है वो क्रिएट हो रहा है। उसने उसको नाम दे दिया कैनाल रेज।
अब जैसे इसने ई बाय एम रेशियो ढूंढना था, किसने भाई, किसने ढूंढा था, जज थॉमसन ने। अब गोल्डस्टीन था वो बहुत ही मतलब समझा नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा है, लेकिन उसने वो ट्राई किया लेकिन वो समझा नहीं पाया, लेकिन उसने बोला यार कुछ तो हो रहा है, कैनाल रेस तो निकल ही रही है। फिर उसने देखा तो पता चला कि यहाँ पे ई बाय एम जो है, चार्ज और एम है, वो किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं थे, क्योंकि वो कहा हमें पता था तो सिर्फ और सिर्फ कौन आता था वहां पे, इलेक्ट्रॉन। लेकिन यहाँ पे एक्चुअल में क्या होता था, यहाँ पे जो पार्टिकल्स थे वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल थे। वो कैसे पता चला, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जब रखे हम लोग, तो इनकी जो बिहेवियर थी वो बिल्कुल अपोजिट थी, अपोजिट थी। किससे अपोजिट थी, किससे अपोजिट थी, कोई बताएगा मुझे। कैथोड रे से। यस, तो इसका मतलब इसके ऊपर हम कौन सा चार्ज बोलेंगे, पॉजिटिव चार्ज बोलेंगे। फिर पता चला कि यहाँ पे जितने भी पार्टिकल्स आ रहे हैं वो भी Q इक्वल टू एनी के टाइप ही है। यहाँ पे जो पार्टिकल्स टकराते हैं वो भी Q इक्वल टू एनी है। लेकिन हाँ एक बात है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है वो किसी गैस के ऊपर डिपेंडेंट नहीं थे कि आपने कौन सा गैस रखा था, लेकिन यहाँ पे जो है कौन सा रे आ रहा है, कैनाल रेस, उसके ऊपर चार्ज कौन सा था, वो टाइप ऑफ गैस के ऊपर डिपेंडेंट था। आई बात समझ में। यस सर। अब गोल्डस्टीन को थोड़ा कंफ्यूजन हुआ कि यार यहाँ पे होता क्या होगा। तब वो थोड़ा सोच के उसने एक थियरी अप्लाई की और उसने ये बोला कि यार देखो, बात ये बन रही है कि कोई भी एटम, चलो कोई भी एटम न्यूट्रल कब होता होगा बताओ। अगर उसमें इलेक्ट्रॉन है तो साथ ही साथ में क्या होना चाहिए, अगर उसमें नेगेटिव चार्ज है तो साथ ही साथ उतना ही क्या होना चाहिए, पॉजिटिव चार्ज। क्या होना चाहिए, पॉजिटिव चार्ज। यस। अब बात ये होगी, उसने अब समझाया, देखो उसने क्या समझा कि हम जब यहाँ पे कैथोड रखते हैं और जब यहाँ पे एनोड रखते हैं, तो जब हाई वोल्टेज देते हैं तो बीच में जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं, गैस के, अब आपने सपोज हीलियम रखा है तो हीलियम में 2 प्रोटॉन होते हैं, उसके आसपास 2 इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। आपको भी पता है, उनको नहीं पता था। अब हाई वोल्टेज है, इसका आयोनाइजेशन हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन तो कौन सी ओर मूव करेंगे, एनोड की ओर। ओके, एनोड की ओर मूव करेंगे क्योंकि वो नेगेटिवली चार्ज है। कैथोड की ओर कौन जाएगा वो बताओ। पॉजिटिव, क्योंकि वो नेगेटिव है ना इसलिए। यस, यहाँ पे हीलियम था इसलिए यहाँ पे +2 शाइन है। अगर सपोज ऑक्सीजन होता, सपोज इसी की जगह ऑक्सीजन होता तो क्या होता बताओ। ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ऑक्सीजन में 16 नहीं नहीं बेटे, क्या मजाक करा याश, 8 Sorry. होते हैं। 8। 8, 2 अंदर की ओर होते हैं और 6 बाहर की ओर होते हैं, 8 2 6, तो 8 इलेक्ट्रॉन इस हो जाएंगे। अब इलेक्ट्रॉन तो इलेक्ट्रॉन है, तो हर एक पार्टिकल जब टकराएगा तब वो तो इलेक्ट्रॉन ही रहेगा। आप हीलियम लो, आप ऑक्सीजन लो, कोई भी गैस लो, लेकिन आप सोचो जो प्लस, ये जो न्यूक्लियस जा रहा है, जो प्लस चार्ज जा रहा है, जो मास के साथ प्लस चार्ज आ रहा है, वो किसके ऊपर डिपेंडेंट रहता होगा वो बताओ, गैस के ऊपर। टाइप ऑफ गैस। अगर हाइड्रोजन हीलियम है तो कम, सबसे छोटा वाला प्लस चार्ज किसका होगा बताओ, हाइड्रोजन का। उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रोटॉन होगा और उसकी वैल्यू आ रही थी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। बेसिक चार्ज बोलते इसको, बेसिक चार्ज, समझे आप। हेलो, Yes, sir. अब आप समझे ऐसा क्यों होता होगा, ये क्यों गैस के ऊपर डिपेंडेंट है और ये क्यों गैस के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। क्योंकि हर एक गैस में इलेक्ट्रॉन तो सेम ही रहेंगे, लेकिन उसका न्यूक्लियस जो है प्लस चार्ज है वो डिफरेंट डिफरेंट रहेगा, और इसी के लिए वो गैस के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं। और दूसरी बात, जब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड आप इसमें डालोगे तब क्या होगा, आप सोच के बताओ चलो। सर, तो हाँ, बोलो। ऑक्सीजन पीछे, ऑक्सीजन की रेस पीछे नहीं जाएगी। ऑक्सीजन की रेस जाएगी ना, इलेक्ट्रॉन वाली ही सो जाएगी, वहां पे भी दोनों रेस दिखेगी। तो सोच क्या रहा पर है वो सर नहीं समझ। प्रोटॉन की कम दिखेगी है ना, इलेक्ट्रॉन की ज्यादा रहेगी, प्रोटॉन की वो चार्ज के हिसाब से रहती है। हाँ, वो हम हाँ। कह सकते हैं। लेकिन एक तो बात पता चल गई कि ये न्यूक्लियस होते हैं, वो तुम्हारे माइंड में अब तो आ गया, इस ओर न्यूक्लियस आते हैं और इस ओर इलेक्ट्रॉन आते हैं, और इलेक्ट्रॉन तो सर। हर किसी में सेम होते हैं, तो वो टाइप ऑफ गैस पे डिपेंडेंट नहीं है। लेकिन हाँ, जो चार्ज है, जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स है, वो किसके ऊपर डिपेंडेंट रहते हो बताओ। टाइप्स ऑफ गैस के ऊपर। यस, दैट्स ऑल।
और यहाँ पे उन्होंने ये भी पता करा कि इसकी जो है वो पूरी अपोजिट है। ओके, इसकी ये जो पूरी बिहेवियर है एग्जैक्टली कैसी होती है बच्चों, अपोजिट होती है। ओके, यस सर। बात यही बन रही है। ओके, चलो, अब किसी को डाउट है तो मुझे पूछ सकते हैं।